Hello dear students, hope you all are fine and waiting for our new video. So here I am back with our new video that is of class 5 of science. So we are going to start our chapter number 1, that is more about plants. So in this chapter we are going to learn about the different ways in which plants reproduce, the structure of seed, the conditions required for the seed germinations, the methods of seed dispersal, kinds of crops and the stages of agriculture. So here we start with reproduction in plants. Why do we need to study about the reproduction? So first, reproduction is the process that in which living organisms produce more of their kind, so the species may not die. Here we can see the many plants around us. So we can categorize it into two categories, that is flowering plants and non-flowering plants. In most of the flowering plants, reproduction takes place through their seeds or their stem. And in non-flowering plants, reproduction takes place through the leaves, roots and spores. So here we start with reproduction from seed. प्लांट्स बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसे सीड्स होते हैं दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. हियर वी कैन सी द सीड्स ऑफ सोयाबीन, पीस और कॉर्न. These are different in their shape, size and structure also, है ना. So let us understand about the structure of the seed. Here we can see a kidney bean seed. Kidney bean, it means rajma. In this structure we can see the seed coat, which is the outer covering of the seed, which protects the baby plant which is inside the seed. And the two seed leaves we can see, we call it cotyledons. Between these cotyledons, the baby plant grows. It has two parts. Baby root and baby shoot. Baby root grows downwards into the soil to form the root, but baby shoot grows upward and give rise to stem, leaves and flowers. Here we can see that सारे सीड्स एक जैसे नहीं होते हैं. दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. सो हियर वी कैन सी द सीड कॉर्न सीड. इट हैज़ ओनली वन सीड लीव, कॉटिलन, दैट इज कॉटिलेडॉन, है ना. सो इट हैज़ ओनली वन सीड लीव and here is seed coat. Okay, so now here we are going to start is germination of seed. What is germination? Germination वो होता है in which baby plant grows from a seed in the presence of air, water and warmth. Warmth, it means temperature, sunlight. Air, water and sunlight, that is temperature, are required conditions for the seed germination. A seed, in a seed, the baby root grows downward into the soil to form the root, and baby shoot grows up out of the soil to form the stem. So here, if air, water or temperature, any one of them is missing, so seed will not germinate properly. Here we can see some of the seeds are healthy and they can grow into a plant, but not all of them are grow into the plant, है ना. Some seeds do not get the favorable conditions for the germinations, और कुछ destroy हो जाते हैं rain से, heat से, है ना. But and बहुत सारे जो होते हैं they are eaten by the animals, है ना. Now here we start seed dispersal. Seed dispersal क्या होता है? It is the process through which seeds are scattered away from the parent plant is called the seed dispersal. जब seed अपने parent plant से दूर हो जाता है, दूर चला जाता है, उसे हम बोलते हैं
सीड डिस्पर्सल. नाउ सीड डिस्पर्सल डिफरेंट वेज में हो सकता है ना. इट इज़ कैरिड फार अवे बाय विंड, वाटर और एनिमल्स, है ना. एंड विंड, वाटर, एनिमल्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, है ना. इसके अलावा सीड डिस्पर्सल एक और चीज़ से हो सकता है, दैट इज़ एक्सप्लोजन, है ना. वी विल डिस्कस इट. इन सीड dispersal, seed size is an important factor that determines how a seed is dispersed. Seed size पे depend करता है ये. So first we will understand the seed dispersal by wind. जो light weighted seeds होते हैं like cotton seeds, maple seeds, ये light weighted होते हैं. So it can be easily dispersed by the wind, है ना. They have very fine and long hairs around them by which it can be carried away by the wind, है ना. Now here we can see the maple seeds. These seeds have the wings, है ना, that spins in the air like helicopter and easily dispersed by the wind. Okay, so now next is dispersal by water. Seeds of the plant that grows near the flowing water are easily dispersed by the water. Okay, these seeds are light and can float on the water. Flowing water can easily carry the seeds to place far from its parent plant. Okay, like coconut. Next is dispersal by animals. हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं ऐसे जिनमें सीड्स होते हैं, और वो सीड्स हम खाते नहीं हैं, वो सीड्स हम फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, जो कि ज़मीन पे गिर जाते हैं. ओके, सो जब ये सीड ज़मीन पे गिर जाते हैं, कहीं इन्हें रिक्वायर्ड कंडीशंस मिल जाती हैं, सो दे कैन ग्रो इनटू अ प्लांट. एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सीड्स, so these seeds are excreted from their body as droppings, है ना. अब ये droppings जो होते हैं they can grow into a new plant. Here is the example of xanthium. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो स्पाइंस होते हैं जिनमें जो एनिमल्स के फर्स पे चिपक जाते हैं. जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो सीड्स भी उनके साथ मूव करते हैं और कहीं ना कहीं गिर जाते हैं. सो इस तरह से भी एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है. नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल बाय द एक्सप्लोजन्स. फ्रूट्स लाइक पीज, जर्मेनियम, गोस्पॉट, पॉपी सीड्स, बाल्सम, ये सारे जब रेपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, तब इनमें एक बर्स्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, जिनके थ्रू हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. जब ये क्लोज पोर्ट होता है तो उसके सीड्स अंदर होते हैं. जब वो पूरी तरह से पक जाता है, रेपन हो जाता है, सो इसके सीड्स बाहर आ जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाता है. सो हियर वी कैन सी द डिस्पर्सल बाय द explosion. Now next is reproduction through the body parts. Here we can see the body parts like stem, leaves, roots, spores. We will discuss it in the another video. Till then, it is enough for today. We are going to meet soon in our next video. So please stay home, stay safe, and revise it, practice it. I will revise it in the next video, another video. Thank you. रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स. एज आई सेड कि रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट के बॉडी पार्ट से भी होता है, लाइक स्टेम्स, लीव्स और द रूट्स और द स्पोर्स. ओके, सो हियर रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्टेम. हमने सभी ने देखा, हमारे सभी के घर में रोज़ प्लांट तो कॉमन है, मिल जाता है ना. सो हम देखते हैं कि जब रोज़ प्लांट की जो स्टेम होती है, हम उसको कट करके दूसरे पॉट में लगा देते हैं, सो न्यू प्लांट ग्रो कर लेता है ना.
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्टेम में क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना. सो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पटेटो, जिंजर, अनियन, है ना. एंड शुगर कैन ऑल्सो, इट ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम द स्टेम, है ना. they all have the birds on them. Okay, so now next is reproduction from the leaves. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनसे प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है लीव्स से, है ना. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं वो थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं, और उसकी जो एजेस होती हैं, एजेस पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, इन योर बुक. इसकी एजेस पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू अगर आप इनको सॉइल में रखते हो तो न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है ना. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम द रूट्स, है ना. कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, दीज आर द रूट्स. रूट्स क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं, और जब हम इसको रीप्लांट कर देते हैं, फिर से उसको प्लांट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करने लगता है ना. सो from the roots plant can reproduce. Next is reproduction from the spores. जब किसी के स्टेम्स पे या फ्लावर्स नहीं होते हैं, किसी प्लांट में, किसी में सीड नहीं होते हैं, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो क्या होता है कि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल है फर्न लीव्स. फर्न लीव्स पे क्या होता है, फर्न लीफ होती है जिस पे डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं, छोटे 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 डॉट्स होते हैं, जिनको सोरी बोलते हैं. इन सोरीज़ में क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और इन स्पोर्स के थ्रू नया प्लांट ग्रो करता है. मशरूम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट. Here is the run through reproduction in plants, so please read it carefully and try to understand it. Okay, now next topic is crops. Crops क्या होती हैं? जब हम large quantities में plant लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. लाइक हमें अगर फूड चाहिए, हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो प्लांट से हमें मिलता है ना. सो जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सो हम उसे क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है. सो वी गेट फूड फ्रॉम दिस, है ना. रॉ मटेरियल्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है, क्लोथ्स मिलता है, टिम्बर मिलता है. ओके, जब हम इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में लगाते हैं फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस, सो हम इसे कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है. हमारे इंडिया में राइस इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप. ओके, राइस इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन आवर कंट्री. काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, मेनली क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं वो हम देखेंगे. क्रॉप्स में हम क्या क्या लगाते हैं? फूड क्रॉप्स होती हैं जिससे हमें फूड मिलता है, मेज, राइस, पल्सेस, शुगर कैन, व्हीट एंड एक्सेट्रा. फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलता है, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हैम्प. और क्या होती हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती हैं. ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स में मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन एक्सेट्रा, है ना. ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स भी होती हैं. अब इन सारी क्रॉप्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप. जब क्रॉप्स को हम समर सीज़न में सोन करते हैं, सो वो क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है. राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, हैम, पीनट्स, मेज, पल्सेस आर द खरीफ क्रॉप्स. और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि समर सीज़न में अच्छी मिलती हैं, है ना. जैसे स्पिनच, ब्रिंजल, टमाटो, अनियन, पम्पकिन्स, गार्लिक, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये समर सीजन्स में आती हैं. ओके, कुछ फ्रूट्स होते हैं स्पेशली जो कि सिर्फ समर सीज़न में मिलते हैं, लाइक मैंगो. मैंगो हमें विंटर्स में नहीं मिलेगा, समर सीज़न में ही ज़्यादातर हमें मैंगो खाने को मिलता है. सो मैंगो, पम्पकिन, मैंगो है, और वाटरमेलन है, पीच है, लीची है,
ये दीज आर द फ्रूट्स दैट ग्रोन इन द समर सीजन, है ना. एंड द क्रॉप्स दैट ग्रोन इन द विंटर सीजन, है ना, आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वीट, ग्राम एंड दीज आर द रबी क्रॉप्स. और वेजिटेबल्स कौन सी होती है? रेडिश है, टर्निप, कैरेट्स, पीज, मस्टर्ड, है ना, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बीन्स. These are the vegetables that grown in the winter season. And fruits na, fruits, apples, oranges, pomegranate. These are the fruits that grown in the winter seasons. Now healthy crops. Healthy crops क्या होती है ना? क्रॉप्स को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. अगर हमें कुछ उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए तो हमें उसका पूरा केयर करना पड़ता है ना. अब उनकी केयर करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट इज़ डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, है ना. जैसे राइस क्या करता है? राइस को ग्रो होने के लिए एक थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी और क्लेई सॉइल चाहिए होती है ना. हाँ, जो ग्राउंड नट होता है ना, राइस को वेट और क्लेई सॉइल चाहिए होती है, बट जो ग्राउंड नट होता है उसको सैंडी और पोरस सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, है ना. सो इफ़ फार्मर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके फील्ड में किस टाइप का सॉइल है तो वो किस टाइप का क्रॉप ग्रो कर सकता है ना. सेकेंड इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड रेगुलरली टू द सॉइल इन सफिशेंट क्वांटिटीज़. हमें अगर जो भी क्रॉप्स है उनको हेल्दी रखना है तो उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को टाइम टू टाइम एक लिमिटेड क्वांटिटी में देना होता है. अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को हार्म करेगा और ऑटोमेटिकली इट विल हार्म टू द क्रॉप्स, है ना. नेक्स्ट इज़ एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ. हमें प्लांट को प्रॉपर वाटर को देना होता है इन एडिक्वेट क्वांटिटी. ओके, जैसे जो राइस क्रॉप होता है, राइस और शुगर कैन, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, बट वीट में उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम वाटर में भी वो ग्रो कर सकता है ना. Now next is the seeds sown should be mature and of good quality. Also seed should not be planted too close to each other or too deep in the soil. जो हम seeds को सोन कर रहे हैं सो ये एक अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारे सीड्स प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. जो हेल्दी होते हैं, जिन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, वही ग्रो करते हैं. सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना. एंड ऑल्सो इन्हें डीप इन द सॉइल भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, है ना, और पास में भी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. कई बार क्या होता है, हार्मफुल डिसीज़ेज़ हो जाती हैं क्रॉप्स में भी और इंसेक्ट्स आते हैं. सो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स भी ज़रूरी होते हैं टू स्प्रे इट ऑन द फील्ड्स. बट इन्हें एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द केमिकल्स, सो दे कैन हार्म द पीपल हु कंज्यूम दिस फूड क्रॉप्स. ओके, बट वी कैन यूज़ द बायोपेस्टिसाइड्स. Biopesticides, these are the special type of pesticides which can be biodegradable in nature and cause no harm to the environment. इससे कोई हार्म नहीं होता है. Such pesticides can be used by farmers wherever possible. Okay. एंड ऑल्सो जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी रिमूव करना होता है रेगुलरली. नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स एंड हाउ टू स्टोर द सीड्स. ना क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. क्रॉप्स में इंसेक्ट्स आके खा सकते हैं, बर्ड्स क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं, ज़्यादा पेस्ट ख़राब कर सकते हैं.
और जब वेदर बहुत ही बैड हो जाता है, लाइक एक्सेसिव रेन होती है, तब क्रॉप्स ख़राब हो सकती हैं. एनिमल्स, grazing animals like cows and goats, this can also harm the crops. Okay, and also some kind of diseases इन्फेक्ट करती हैं जो लीव्स को, स्टेम्स को और रूट्स को, है ना. सो इन सब से बचने के लिए क्या करना होता है, क्रॉप्स को बचाने के लिए ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में ही रखना होता है, ताकि वो मॉइस्चर से ख़राब ना हो या फिर उन्हें बर्ड्स ख़राब ना करें. बाकी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स को दूर रखने के लिए हम क्रॉप्स के आसपास फेंसिंग कर सकते हैं. नाउ सेकंड इज़ स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कितनी स्टेजेस होते हैं? हियर आर द 6 स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज़ प्लाउड. फर्स्ट वी हैव टू प्लाउड द fields, then manure is added to soil. manure ऐड करना होता है, and after that, after adding the manures, we should sow the seeds. After that we have to supply the water, and this process is called the irrigation. जब हम वाटर सप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस को हम इरीगेशन बोलते हैं. आफ्टर दैट जब क्रॉप्स ग्रो करने लगती हैं, सो इनमें ज़रूरी है पेस्टिसाइड्स डालना. सो 5th स्टेज इज़ स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स. एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ 6th वन इज़ हार्वेस्टिंग. जब सारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, देन दीज आर कटेड एंड गैदर्ड. दिस इज़ कॉल्ड द हार्वेस्टिंग. After the crop is harvested, the grains are stored in the granaries. जब ये सब प्रोसेस हो जाती हैं, हार्वेस्ट हो जाता है ग्रेन, सो हम इसे ग्रैनरीज में रख देते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. प्लीज़ रिवाइज इट and practice it at home, and we'll do the exercises in the next video. Stay home, stay safe. Thank you.